Thank you, Lake. Thank you so much. अदिति दीदी ने याद दिलाया आपको by the way. Okay. Now I think Naman is angry with me, so I will personally message him and tell him to join. ठीक है. तो yes, what was I saying? मैं क्या food के बारे में. Fasting. हाँ, fasting. So okay, it's fine if you people can live without food कुछ समय के लिए, but it's something very important कि उसके बिना. And कितने लोग, you know, how many of you are foodies who are very fond of मतलब different cuisines and different. Okay. Auntie, me, I can eat a lot. Like. Okay. Ma'am, me. Nishita, Asmi, sorry, yes, Neil, Lake, Siddhi. Okay, and me also. So Halia and Shaurya, Rishabh. Okay. So mostly everyone is a foodie. ठीक है. Lake, which is your favorite food? Like pizzas, burgers. Pizzas, burgers. Okay. अभी यहाँ पे चाट का भी दुकान है, वो सब अच्छा लगता है. Okay, nice. Mannat? Yes, auntie. What is your favorite food? Auntie same, सबका same होता है. हाँ, सबका same नहीं है. I don't know the Junkies. Junk. Okay, whether it's pizzas, burgers, Subway. Okay, ठीक है. और कुछ anyone कि जिसको मतलब home cooked food पसंद है या जो भी whatever. तो let's see today कि how मतलब फूड एंड वाटर से कैसे हम उसमें ग्रैटिट्यूड डाल के what results we get, how does it create magic for us, what is its relation to magic. स्नेहा पढ़ना चाहते हो क्या आप? You were saying since 2-3 days. No, auntie, not today. Oh, अच्छा, not today. Okay, चलो, who wants to read today? I can read, auntie. कौन बोला? Okay. Auntie Nishita. Nishita. Okay, yes. So the magic in day 8, the magic ingredient. What is that magic ingredient? जो हमारे kitchen में, जो हमारे food में, what is that? चलो, let's see. Yes. Day 8, the magic ingredient. A thankful heart has a continual feast. W.J. Cameron, 1879 to 1953, journalist and businessman. Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. An opportunity to be grateful will increase the national life exponentially. Yeah. If you think about a time when you were really hungry. 1 minute. थोड़ा निशिता आपका नेटवर्क थोड़ा ठीक करो, उसमें ना बार बार कुछ ब्रेकअप आ रहे हैं. Okay, so किसी के घर में ऐसा है, you know, if your people have seen your elders, maybe your grandparents or your parents, you know, praying before eating food, और या फिर खाने के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, या okay, you have seen in your houses. Okay, सभी के almost parents करते हैं. मैं भी करता हूँ. कौन करते हो? Lake, you do it. Yeah, मतलब हाथ जोड़ के करता हूँ. Very nice. Okay. Yes, honey, what were you saying? Yeah, mas even in our home, it's the same thing. You have seen your parents or grandparents, right? Yeah. Okay. Yeah, my dad always does it. Okay, yes. तो early मतलब है ना, पहले suppose around जो भी 5 months पहले तक समझ लो, when I had also not done this magic book, I saw कि मतलब my father-in-law, my father, I have seen. मेरी mother को मैंने नहीं देखा है, but हाँ, father-in-law and father को I have seen them folding hands. तो it was like कि हाँ होता है, बड़े लोग करते हैं.
And when I did this chapter, and then we started doing this, now it's something कि it's मतलब any kind of food or any kind of liquid, I don't have it without उसको पहले gratitude देके. अच्छा निशिता, is your network fine now? बहुत उसमें थोड़ा हाँ break. जी, I feel it. अब ठीक है क्या? I think so. थोड़ा माइक में better. प्रॉब्लम है आंटी. माइक में प्रॉब्लम है क्या? अब ठीक हुआ? थोड़ा बेटर है, थोड़ा. यस. बैकग्राउंड वॉइस लग रहा है मैम, बैकग्राउंड. अब नहीं होगा, मैं रूम चेंज कर ली. ओके चलो. Yeah. But if there is a problem, aunty, अभी भी then somebody else can read. I'll read some other thing. थोड़ा सा एक echo type का, मतलब it's not clear. Okay, the auntie, someone else can read then. So better होगा. I Yeah. don't mind reading. Yes. Oh, I don't mind reading, but I Okay, don't think yes. your audio clear है. I think Headphone your लगा. voice is clear. थोड़ा सा अब अगर आपका कुछ माइक का सिस्टम है तो I don't think so. नहीं, माइक नहीं है, बस इसी में जो है. अगर आ रही है तो I can start नील reading. की आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. यस मैम, इट्स परफेक्ट. Yes. यस आंटी. ओके. सो ये ना हर कल्चर में, पहले तो हर कल्चर में था दिस हैबिट गिविंग थैंक्स बिफोर वी ईट. इट्स अ वेरी वेरी एंशिएंट ट्रेडिशन, बट नाउ ऑब्वियसली इन द 21st century it has थोड़ा सा been left behind. कभी कभी मतलब इफ इन इंग्लिश मूवीज, आप लोग सभी इंग्लिश मूवीज देखते हो, मतलब haven't you seen, you know, whenever they are sitting on the table, वो they say grace बोलते हैं उन लोग, you know, before having food, and then when everyone has said grace, then only they start eating. तो वहाँ के कल्चर में भी है. We have followed Western culture, their clothes, their music, सभी चीज हमने फॉलो की है उनकी. बट इफ अगर कुछ कुछ चीजें, एंड स्पेशली तो हमारे ट्रेडिशंस में भी है, बट सम थिंग्स वी आर यू नो वेरी मच एम्बैरेस्ड ऑफ, या फिर लगता है कि व्हाई डू वी नीड इट, एवरीथिंग वी नीड द रीजन ना. तो टुडे वी विल सी द रीजन. यस नील, कंटिन्यू. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. If you think about a time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. या 1 minute. सो किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी? एनीवन, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब है ना बहुत बहुत देर तक खाना नहीं मिला, एंड कुछ भी ऐसा इमरजेंसी केस, या मतलब सपोज आप फ्लाइट में हो और मील नहीं मिला और आप कुछ लेके भी नहीं गए थे, या ट्रेन में हो और मतलब फूड खत्म हो गया, या घर पे ही, या कोई रास्ते में, कुछ ऐसा किसी के साथ हुआ है कि बहुत टाइम हो गया एंड माने यू वर रियली हंग्री एंड यू फेल्ट एज इफ कि कुछ भी मिल जाए खाने बस? एनीवन? यस, इट हैपेंड. स्नेहा हाँ, बताओ बेटा. एक्चुअली मेरा स्कूल था, पहले से एग्जाम था, उसके बाद लगातार 3 ट्यूशन थे रात को, मतलब मेरे घर से आधा घंटा दूर था. तो ओके. वी थॉट दैट ट्यूशन हो जाएगा, उसके बाद घर पे आके खा लेंगे, कुछ लेके नहीं गए थे. और फिर स्कूल 7 बजे निकले थे और आए थे घर 3 बजे, तो बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, तो वी वर रियली वेरी हंग्री. ओके. सो हाउ डिड यू फील? लग रहा था कि जो मुझे भाता भी नहीं, अगर वो भी मिल जाए तो खा लूं. यस. एंड पता है स्नेहा के साथ हुआ और मेरे साथ एक बार हुआ. मतलब आई हैड गॉन आउट शॉपिंग, वो जन्माष्टमी की पूजा होती है ना, तो मैं उसके फ्लावर्स, झूला, वो सब मैं लेने के लिए गई थी. एंड आई वाज कमिंग बैक इन अ कैब, और उस समय वो बारिश का बहुत सीजन रहता है उस जुलाई एंड अगस्त में, और वो इतना बारिश हुआ आते समय कि यू नो जब तक मैं अपने घर, मेरा घर जो एरिया में है वहाँ पे मैंने बहुत जल्दी वाटर लॉक्ड हो जाता है.
एंड वो पूरा वाटर लॉक्ड हो गया था एंड इतना ट्रैफिक, और हम लोग फ्लाईओवर पे थे, मतलब हम फ्लाईओवर पे हैं और मेरी कैब रुकी हुई थी एंड मतलब वो आगे ही नहीं बढ़ रही है, दैट तो माने नो कार्स आर मूविंग ड्यू टू वाटर लॉगिंग, वो ट्रैफिक हो गया। एंड माय गॉड, मतलब मैं सुबह से निकली हुई और मेरे को लगा कि घर तो पहुंच ही जाएंगे, तो घर जाके खाऊंगी आराम से। एंड दैट डे आई वाज सो हंग्री, और मतलब बेस्ट चीज बताऊं क्या हुआ, मतलब मेरे पास मेरे कैब में फूल के अलावा कुछ नहीं है एंड मुझे लगा कि अगर आधे घंटे और लगाना दे तो आई विश कि मैं वो फ्लावर्स खा लूं, वो जो मैरीगोल्ड के फ्लावर्स थे। मतलब क्या पता यही खाने से कुछ न कुछ वो मिल जाएगा सेटिस्फेक्शन। एंड मतलब ओ गॉड, दैट डे मतलब जब कार आगे बढ़ी ना, आई कॉल्ड अप माय हाउस, जल्दी से फूड एकदम रेडी रखना, इन 2 मतलब आई एम कमिंग एंड आई एम हैविंग। तो दैट डे आई, वो तो मतलब वो था एकदम। जब हम लोग फास्ट सब करते हैं तो वी नो, हाँ, कि हाँ आज फास्ट है, इतना बजे खाना है, तो वो मालूम रहता है, उस हिसाब से बॉडी इज प्रिपेयर्ड। और खैर मैं उतना करती भी नहीं हूँ फास्ट, बट दैट डे इट वाज, आई रियली फेल्ट कि यस, फूड इज फूड। ओके, यस, कंटिन्यू नील। थोड़ा सा लाउड, हाँ। To feel even more gratitude for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night. All of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. Think यस, about वेट वेट वेट, सो जो भी हमारे पास फ्रिज में अभी है या हमारे फ्रूट बास्केट में है, सपोज एप्पल्स है या कीवीज है या जो भी पोमीग्रेनेट्स जो भी है हमारे पास, कोई जरूरी नहीं है कि वो बहुत ही पास में कोई फार्म है वहां से आया है हमारे पास, नो नो नो। और कितने स्टेट्स क्रॉस करके आया है ये भी नहीं मालूम। कोई एप्पल अगर कहीं और से किसी सिटी से आ रहा है, कोई वेजिटेबल है वो किसी और स्टेट से आता है, एंड वो कैसे इतना फ्रेश आ जाता है हमारे पास, उसके पीछे मतलब पहले जिस फार्म पे वो फार्मर ने उसके लिए सीड्स डाला होगा, उसकी प्रोसेस मालूम है। एवरीवन हैज रेड ज्योग्राफी ना, एग्रीकल्चर सब ने पढ़ा है, उसमें एक टॉपिक आता है। तो पहले उसके सीड्स डाले होंगे, फिर उसको मतलब कितना महीने तक वाटरिंग एंड फर्टिलाइजर्स एंड दिस एंड दैट, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद उसका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस, उसके बाद जब उन लोग हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो पैकिंग होती, कितना ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ कहाँ क्या 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 क्या, उसका एक पूरा प्रोसेस है। वो कितने मतलब उन लोग उसको कितना सेफ रखते होंगे कि कंज्यूमर्स के पास एकदम फ्रेश पहुंचे। बिकॉज अगर हमारा सपोज फ्रूट्स वाला वो एकदम स्टेल, एकदम बासी अगर एप्पल रखेगा, हम लोग खरीदेंगे क्या? वी विल नॉट बाई, विल बाई एकदम फ्रेश ऑब्वियसली। तो वो इतना उसको सेफ रखकर एकदम लेकर आते हैं हमारे पास, और एकदम नीचे हमारे घर के नीचे जो सब्जी वाला है उसके पास तक पहुंच जाता है वो एक हमारा एप्पल। उसके पीछे की कितनी बड़ी कहानी है, सच अ लॉन्ग स्टोरी, सच अ लॉन्ग प्रोसेस बिहाइंड दैट। एक हमारी रोटी जो हम खा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, वो आटा, उसके पीछे गेहूं, उसके पीछे उसका पूरा प्रोसेस। जस्ट इमेजिन द पीपल इन्वॉल्व्ड इन दैट प्रोसेस। और हम क्या लेते, एक एप्पल उठाया, खाया, एंड वी, आई डोंट थिंक वी थिंक अबाउट इट, नो, इवन आई डोंट, इट्स नोबडी थिंक्स कि उसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है। तो जब हम ये इतनी लॉन्ग प्रोसेस, लोगों की मेहनत, तो वी फील थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड फॉर उस फूड के लिए, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड हमारे लिए बढ़ जाता है। द पिकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टेशन पीपल,
और इतना सिंक्रोनाइज्ड वे में पूरा ये प्रोसेस हो जाता है. द होल सिस्टम इज सो हार्मोनाइज्ड एंड सिंक्रोनाइज्ड. जस्ट इमेजिन मैंगोज. मतलब अभी अगर पैंडेमिक था ना लास्ट ईयर, आई रिमेम्बर देयर वर नो मैंगोज इन द मार्केट. अभी कलकत्ता का मैं बता रही हूँ, क्योंकि आया ही नहीं ना. ट्रेन्स बंद, ट्रेन्स सब बंद थे, सब देयर वाज नो ट्रेन्स वर्किंग, सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बंद. मतलब हम लोगों को लगा माय गॉड व्हाट इज दिस. जो लोकल एकदम थोड़े बहुत जो आम होते हैं एकदम लोकल वाले, दे वर नॉट गुड, वही खाना पड़ा हमको. तब इस साल तो एक्चुअली बहुत ज्यादा ही वैल्यू पता चली. जो एवरी ईयर उतना ठीक है, और ये यू नो एवरी ईयर तो शायद कंप्लेन करते थे यार खाली जाओ और बाजार में मैंगोज ही मैंगोज मिलते हैं और कोई फ्रूट ही नहीं रहता समर्स में. जब देखो मैंगो, कितना मैंगो खाए हम लोग, कोई और फ्रूट तो लाओ, ये कंप्लेन करते थे. और इस बार लगा यार यार ड्यू टू कोविड, ड्यू टू दिस पैंडेमिक, आई एम नॉट गेटिंग माय फ्रूट्स. Okay, yes, continue. Ma'am, here in Dubai, there's no mangoes at all. No Indian Oh, mango. okay. Really. Wow. So just think about it. Yes, continue. Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airports, schools, hospitals, and every home on the planet. Yes, just think about it. मतलब जो मीट ग्रोअर्स है, ये डेयरी फार्मर्स, कॉफी एंड टी ग्रोअर्स, माय गॉड, कभी देखा है किसी ने कॉफी प्लांटेशंस, टी प्लांटेशंस? वो ना जो विमेन होते हैं वो पीछे में वो टांग के रखते, एंड दे आर पिकिंग द टी लीव्स एंड थ्रोइंग पीछे, फिर वो पिक करते देन पीछे फेंकते. वो पीछे में उनके वो रहता है ना, व्हाट इज दैट, बास्केट काइंड थिंग. मैंने तो देखा है बहुत ट्री प्लांटेड. तो मतलब यू नो सो मेनी women involved in that tea, कितने men, so many people, maybe children, or dairy farmers. My god, it's then again another huge area. और जो पैकेज्ड फूड कंपनीज, आपकी एक चिप्स भी आती है ना, एक लेज की चिप्स या बिंगो मैडैंगल्स या कुरकुरे, व्हाटएवर इज, नाचोस जो आते हैं हमारे. तो जस्ट थिंक उसके पीछे वो जो फैक्ट्री में हो रहा है, पहले बन रहा है, पैक्ड हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इट इज कमिंग टू योर स्टोर. आप स्टोर में जाते हो, एक लेस की चिप्स देना, और सपोज उसके पास नहीं हो तो आप क्या बोलोगे, व्हाट, क्या मतलब, हाउ इज इट पॉसिबल, आप लेज नहीं रखते हो अंकल? तो वो ही ट्राइज टू कीप एवरीथिंग ना अकॉर्डिंग टू योर नीड. तो इट इज देयर. जितने हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में जस्ट इमेजिन अगर फूड नहीं हो, टाइम से ना पहुंचे तो. हॉस्पिटल्स में अगर पेशेंट्स को तो एवरीडे चाहिए मील्स, अगर उनके पास कैसे सप्लाई हो रही है, सप्लाई कैसे जा रही है उनके पास. जो एरोप्लेन्स है वहां पर सप्लाई कितनी इंपॉर्टेंट है. एवरीवेयर जस्ट थिंक, स्कूल्स के कैंटीन्स में, कैफेज में, जितने कैफेज हैं वहां की सप्लाई, जितने घर है, तो इट्स सच अ ह्यूज मतलब सिस्टम की. एंड फूड एंड ड्रिंक, ओके, मैं दोनों का ही बोल रही हूँ कि ये कहाँ से इतनी ज्यादा मतलब सिस्टमैटिक वे में सप्लाई हो रही है टू ईच एंड एवरी प्लेस, कि हर चीज हमको अवेलेबल है. पहले याद है मुझे वो ना वाई वाई होती है ना, नूडल्स, वो ना वाई वाई सिर्फ काठमांडू में मिलती थी. एंड whenever my uncle he used to come from Kathmandu, and I was like कि आप जब भी आओगे ना वाई वाई लेकर आना, बिकॉज वो यहाँ नहीं मिलती थी. एंड नाउ इट्स अवेलेबल इन एवरी स्टोर. आज के जमाने में मैं तो कहीं से भी वाई वाई खरीद लेती हूँ. तो जस्ट इमेजिन, मतलब इतना बिग, वाई, क्यों ऐसा हुआ, क्यों इंडिया में भी मिलने लगा? क्योंकि चालू हो गए ना इंपोर्ट्स या प्रोडक्शन या जो भी स्टार्ट हो गया उसका.
Okay. Yes. Continue. Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us. Ma'am, can you hear me? Yes. Hello. Yes. क्या हुआ? Who was that? सस्पेंस क्या था भाई? अच्छा, Neil, your voice is very, very low. Yeah, that's what मैं बोल रहा था हाँ, मैम, it's मेरा very mic low. नहीं है. Please, somebody else volunteer, bhai. I'll read, auntie. Okay, yes, Siddharth. Food is a gift, huh? From here. And food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes, and every consumer product and appliance on the planet. Make plastic, glass, and metal, make life-saving medications, build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. Auntie, you'll continue. Yes. Okay, 1 minute. ठीक है. So food is a gift. Everyone agrees? Everyone agrees? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, auntie. Okay. Yes. Yes, ma'am. Food is a gift. कौन दे रहा है ये gift? Yes, ma'am. Who is giving us this gift? Ma'am, nature. Yes, ma'am. Nature. Yes. So it is a gift of nature. And मतलब हम लोग always है ना, सपोज किसी ने कोई गिफ्ट दिया, सपोज आपके फ्रेंड्स ने कोई गिफ्ट दिया या पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया एंड उन्होंने बहुत मतलब सोच के गिफ्ट दिया कि दैट पर्सन विल लव इट एंड बहुत एकदम प्यार से वो गिफ्ट दिया और आपने वो गिफ्ट देखा और आपने को लगा वो इट्स नॉट मतलब कितना बेकार है और उसको साइड कर दिया. सो हाउ विल दैट पर्सन फील? उसके सामने ही उसको कैसा लगेगा? वो दोबारा आपको गिफ्ट देगा? नहीं ना. ही विल थिंक कि उसको उसकी वैल्यू ही नहीं है इस गिफ्ट की, तो व्हाई डू आई केयर, व्हाट डू आई केयर, मैं इसको दोबारा गिफ्ट क्यों दूं, उसको ऐसे ही रहने दो, इज बेटर मे बी विदाउट इट, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशन, अब मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा. So food is also a gift, and whenever we disrespect it, whenever we don't show our gratitude towards it, or disrespect food के साथ कभी अपनी प्लेट फेंक देना या कभी भी ऐसा कुछ करते हैं कि किसी को फूड को ही बोलना हाउ व्हाट हॉरिबल फूड, तो वी आर ऑलवेज डिसरिस्पेक्टिंग इट जब भी ऐसा करते हैं. तो उसके बाद वी नेवर एक्सपेक्ट कि नेचर आपको ये गिफ्ट वापस देगा. या ऑब्वियसली आप फूड तो खाते ही रहोगे, बट वो जो फीलिंग जो नेचर मतलब वो प्यार से दे रहा है वो लव आप उस फूड में नहीं फील करोगे. एंड फूड के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, दैट इज वाटर. अगर वाटर मतलब जस्ट इमेजिन कि हमारा घर अगर बना है तो वो बिना वाटर के नहीं बन पाता. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट इन एवरी एलिमेंट, जो भी चीज बना है वाटर उसमें इंपॉर्टेंट होता है. ऑल द इंडस्ट्रीज विदाउट वाटर दे कैन नॉट फंक्शन. एंड हॉस्पिटल्स में अगर वाटर नहीं हो, माय गॉड, सेलाइन जो चढ़ाते हैं, जो मतलब स्मॉल इंजेक्शंस, एवरीथिंग, वाटर इज द मेन उसका इंग्रेडिएंट. प्लास्टिक में हर चीज, मेडिसिन्स, एवरीथिंग इज का मतलब एक फैक्टर वाटर होता है. And water keeps our bodies alive. Everyone knows ना how much percentage water is there in our body. कितना होता है? 70%. 70%, yes. And anyone knows कि हमारा brain जो है
Our body is made up of 70% water. Our earth is made up of, yes, 70 to 75% water. And our brain is also made of 75 to 80% water. Just think. Itna important water in our life, in our body. So yes, water keeps our bodies alive. If there is magic on this planet, it is contained in water. Okay, my water bottle is very far. नहीं तो मैं दिखाती आपको. चलिए आगे पढ़िए. If there's magic on this planet, it is contained in water. Lauren Esley, 1907 to 1977, anthropologist and natural science writer. Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and ecstatic joys because of nature's gifts of food and water. To say the simple magic words, thank you, before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. Yes, तो अगर आप एक सिंपल आप मन में ही बोल रहे हो, जब सपोज कोई जरूरी नहीं है कि आप जो मतलब जो हाथ जोड़ोगे और बहुत बड़ा एक लंबा सा प्रेयर बोलोगे. इट इज नॉट नेसेसरी. अगर आपने सिंपल एक थैंक यू भी बोला बिफोर यू ईट और ड्रिंक एनीथिंग, आपने उसको एक्नॉलेज किया, एक्नॉलेज्ड द गिफ्ट ऑफ फूड और वाटर एंड द मिरेकल ऑफ इट. यू जस्ट रिकॉग्नाइज्ड इट. ठीक है ना? यस, ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर इट. Yes. The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't just affect your life. Your gratitude also impacts the world supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of the attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. Wow, so this is so beautiful. And here, यहाँ पे तो सब students है. वहाँ पर तो मेरे को statistics समझाना पड़ता था to all the women जो पहले थे. यहाँ पे तो सब students हो आप लोग. आप लोगों को मालूम है ना, India is also a developing country, third world country, and so many other countries, especially Africa. अफ्रीका के अगर आप बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं अभी तक जहां पर मतलब है ना, मतलब सो मेनी चिल्ड्रन डाई एवरी डे ऑफ हंगर. इतने मतलब मेल नरिशमेंट से, हंगर से. कंट्रीज लाइक सोमालिया या भी और भी बहुत सारे कंट्रीज है, स्पेशली अफ्रीका. और भी होंगे, और भी बहुत ऐसे कंट्रीज है हु आर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जहां पर मतलब पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर जस्ट कि उनकी हंगर मिट जाए. मतलब यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग कि मतलब वी आर स्ट्राइविंग कि आज मुझे बारबेक्यू का चाइनीज मिल जाए, आज मुझे डोमिनोज का पिज्जा मिल जाए. हमारी ये स्ट्राइफ रहती है ना, दिस इज आवर स्ट्रगल. और वहां पर इट्स लाइक कि मुझे आज खाना मिल जाए. तो दिस इज ऑल्सो अ साइंटिफिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सभी को मालूम है. यस. and law of action and reaction. Remember Newton's, I think, third law of motion है ना, कि every action has an equal and opposite reaction. तो suppose अगर हर कोई तो नहीं कर रहे, अगर बहुत सारे लोग gratitude start करना चालू कर दे for the food and water, तो उसका एक opposite reaction होगा, है ना. This is a, suppose ये एक action है कि yes, lots of people are doing gratitude for की abundance of food and water. तो उसका जो opposite reaction होगा कि जहां पर scarcity है, जहां पर food and water नहीं है ना, वहां पर भी food and water supply बढ़ जाएगी. Just imagine कि हम लोग indirectly what we'll be able to do. मतलब अपनी life के लिए तो we will do, मतलब हाँ, हमने magic create करी दी gratitude देके. And for people who don't have enough food, कि कितने लोग ऐसे हैं मतलब सुबह में अगर खाया तो जरूरी नहीं है कि रात में उनको मिलेगा कि नहीं. यह हो सकता है पूरे दिन उनको मिलेगा भी कि नहीं. इट्स नॉट.
और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तो ठीक है, अफ्रीका आप भूल जाओ, अपनी अपने सिटी में, अपने अपने स्टेट में ही आई थिंक सबने देखा होगा. Have you people seen or not? You know, hungry people on the streets, जो आपसे सिर्फ बोलते हैं, 2 रुपए दे दो, मैं ये खाना खा लूंगा, 5 रुपए दे दो. And yes, I'm sure every one of you must have seen hungry people. Okay, yes, Siddharth, continue. In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you're dreaming of. ये बहुत weird लगता है ना, कि मतलब if I am starting gratitude for food and water, मैंने सिर्फ यही start किया, and ये ऐसा एक magic मेरे life में continue करता है, ऐसा एक golden thread weave करता है, which will accomplish all that I am dreaming of, all that I love. ये क्या connection है? What is this connection about? It is not कि if I am starting gratitude for food and water, तो मेरे पास हमेशा food and water रहेगा, वो तो रहेगा ही, but it will bring everything that you love, everything that you are dreaming of, very very much closer to you, closer in your life. Okay, yes, it is. ये हर चीज एक connected है, इसीलिए दिया हुआ है हर chapter में जो है, it's all are connected. Yes. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure and purified them so that everything you consume had the ultimate effect of well-being on your body. Yes, तो ये observers effect ना, आप लोग गूगल कर लेना, जो भी गूगल वाले लोग हो ना, this is something very important. Observers effect, मतलब जिस चीज पर हम अपनी ऑब्जर्वेशन लगा देते हैं, हमारा ध्यान, हमारा अटेंशन, वो ना उसकी वो एनर्जी चेंज हो जाती है. दिस इज मतलब, और ये पूरा मतलब क्वांटम फिजिक्स में है ये, द ऑब्जर्वर इफेक्ट. और आप कहीं भी नोटिस कर लो, आज सपोज यू हैव, आज अभी कौन लेख ने कहा था ना, पिज्जा पसंद है, बर्गर पसंद है. अब सपोज उसने ना बेस्ट रेस्टोरेंट का बर्गर ऑर्डर किया आज, मैकडोनल्ड्स या उससे भी जो उसको पसंद है, बेस्ट रेस्टोरेंट का, वहां का बेस्ट बर्गर ऑर्डर किया, एंड ही हैज इट इन हिज प्लेट. और ना कोई इम्पोर्टेंट फोन आ गया उसका, या कोई मतलब फोन पे बात कर रहा है वो, एंड ही इज ईटिंग दैट बर्गर. ठीक है, वो बर्गर वो खा रहा है. ओके, तो अच्छा ठीक है, मैं इनडायरेक्टली क्यों बात कर रही हूँ, मैं सिद्धार्थ अभी मुझे दिख रहा है और तो कोई दिख नहीं रहा है, तो सिद्धार्थ को ही बलि का बकरा बना लेते हैं. तो यस, तो सिद्धार्थ, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? Same man, pizza, pasta, like once in a while. Yeah. तो suppose you have ordered your favorite pasta, favorite pizza, जो भी है आपका favorite, whether it is thin crust or pan pizza or whatever, you have ordered it, और वो आपके पास घर पर आ गया, उसको बहुत अच्छे से आपने अपने सामने रख लिया कि wow, today I am going to enjoy my favorite pizza. और है ना, अपना मतलब आप कोई अपना सीरियल चला लिए, your favorite some series or something, और जिसमें इतना ऐसा कुछ वो engrossing scene है कि you are seeing that you are in that scene and you are eating that pizza. ठीक है, आप वो पिज्जा एंजॉय कर रहे हो, आप खा रहे हो. आपने शायद उसमें देखा भी नहीं कि उसने शायद ऑलिव्स नहीं दिया, या ऑलिव्स आज ज्यादा दे दिए, या मशरूम दे दिया, या फिर उसका जो, ठीक है, ये आपका एक सिनेरियो हुआ. यस, यू एंजॉयड योर पिज्जा एंड यू एंजॉयड योर सीरीज साइमल्टेनियसली. एंड सपोज मतलब आप लोग 4 फ्रेंड्स एक बैठे हो टेबल पे, एंड वो पिज्जा आया, एंड यू आर लाइक वाओ माय गॉड, आज तो बहुत सारे ऑलिव्स दिए हैं. और फिर आपने आराम से उसमें वो
oregano and chili flakes and ketchup and everything, and then everybody is like wow, cheers, है ना, मतलब सबने कुछ ना कुछ अपना favorite मंगाया है, and then you are eating one slice of it, उसका taste को relish किया, and it's divine. तो आपको क्या लग रहा है कि the pizza which you had in your room in front of your laptop, in front of that engrossing scene of your series, और जो आपने उस पिज्जा को देखकर, उसको ऑब्जर्व करके जो आपने वो पिज्जा खाया, will it taste the same? नहीं ना, No. नहीं ना. तो हम लोग जब कोई भी चीज में ऑब्जर्वर्स इफेक्ट डालते हैं, मतलब उस पर पूरा ध्यान देके उसको फोकस करके जब खाते हैं, क्यों नियम बना हुआ है और ऑल दोस पीपल की डाइनिंग टेबल पर ही खाना है, क्यों मतलब सेल फोन्स आर नॉट अलाउड, वी फील वेरी बैड. ये क्या मतलब है? मतलब होता है ना, फोन्स आर नॉट अलाउड ड्यूरिंग ईटिंग दिस एंड दैट, क्योंकि वो फूड आप रेलिश नहीं कर रहे हो, दैट नरिशमेंट इज नॉट गोइंग इनसाइड यू. वो आप खा लिए, ठीक है, यू आप सपोज, हाँ, आपका सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड में, हाँ मैंने बर्गर खाया आज मैंने, बट यू डिड नॉट एंजॉय इट. इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व्ड इट, इफ यू हैव नॉट प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व करके, देख कर, उसको रेलिश करके उसको नहीं खाया है. यस, कंटिन्यू, अभी चैप्टर बाकी है, फिर अपने इस पर और ड्वेल करेंगे. In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, where was it? Next page, right? Oh, नहीं, yes. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changed their energy structure. Oh, इस पे हम लोगों ने बात नहीं की. Okay, and purified them so that everything you consumed had the ultimate effect of well-being on your body. Okay. So energy structure क्या होती है? Every kind of food has energy. ठीक है, उसकी एक अलग ऑरा, एक अलग एनर्जी होती है. पिज्जा की भी है, बर्गर की है, चिप्स की है, जो भी है, सबकी एक एनर्जी स्ट्रक्चर होती है. एंड सपोज आज अस्मी ने पिज्जा ऑर्डर किया है, अभी अस्मी की बारी आई है. ओके, तो अस्मी, वेयर हैव यू वैनिश्ड? आज अस्मी ने ना पिज्जा ऑर्डर किया है, आज उसका डे है, एंड शी हैज ऑर्डर्ड हर पिज्जा, और डोमिनोज में किया है. और डोमिनोज में जो वो आदमी बना रहा है ना, द पर्सन हु इज बेकिंग, उसने ऑर्डर लिया एंड ही स्टार्टेड उसका मतलब डो रेडी कर रहा है उसको, और उसकी फैमिली में ना आज किसी की डेथ हुई हुई है, बट ऑब्वियसली कि उसको काम पे आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी जो उस दिन की कमाई है वो भी उसको नहीं मिलेगी. तो he had to come to work, and while baking her, मतलब वो उसका डो बना रहा है, वो उसका जब पिज्जा डाल रहा है ओवन में ना, उसके अंदर क्या थॉट्स आ रहे हैं, एवरीवन कैन इमेजिन. somebody has died in his family, तो ही इज बार बार उसको वो याद कर रहा है, वो सीन याद कर रहा है, डेड बॉडी याद कर रहा है, उसके अंदर वो सैडनेस, वो ग्रीफ, और वो सब चीज कहाँ जा रहा है? In the food. that he is In making. our body. वो सब चीज उस डो में, उस पिज्जा में जा रहा है जो वो बेक कर रहा है. हमारे थॉट्स, मतलब जो भी खाना बनाता है या किचन में आपके या कहीं बाहर, जो भी, वो थॉट्स, वो वर्ड्स, वो फीलिंग्स ना उस फूड में जाती है. एंड आपके घर में वो पिज्जा आ गया और आपने उसको खा लिया, those feelings, those emotions na, those went inside you. It's a science. Okay, it's a science. तो हम ग्रैटिट्यूड का ये कारण एक और बता रहे हैं ना, जस्ट आई एम सिंप्लीफाइंग इट, कि वो उस खाने की एनर्जी, जो फूड अभी आपका सैडनेस और ग्रीफ और उसमें भरा हुआ था, और आपने जस्ट वो पिज्जा देखा और बोला वाओ थैंक यू, ठीक है, उस पिज्जा की एनर्जी चेंज हो गई. नाउ अगर आप वो पिज्जा खा रहे हो तो वो ग्रीफ और वो सैडनेस, वो फीलिंग्स आपके अंदर नहीं जाएगी. एंड इट इज नॉट ओनली आउटसाइड फूड, घर में भी कुक इज, आपका मतलब कुक बना रहा है कोई, एंड उसको खुन्नस मची हुई, आज उसको बहुत डांट पड़ी है, एंड ही इज लाइक धाम एंड धाम, वो कुश्ती लड़ रहा है विथ ऑल द स्पून्स एंड ऑल द, उसकी वो सारी भड़ास, उसकी वो सब, वो ना उस फूड में जा रही है. मन होता है ना, मुझे तो कोई
कदर ही नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं करता, ये मैं कितना ही काम कर लूं यहाँ पर किसी को फर्क नहीं पड़ता, या फिर उसका कोई फोन आ गया उसके घर से, he has no family here ना, उसके घर से कोई फोन आया है, उसको बहुत चिंता है कोई चीज की, तो वो चिंता उसमें जा रही है, वॉट एवर द रीजन। अगर हमारे घर वाले ही, हाँ पेरेंट्स भी कुक करते हैं, मदर्स कुक करती हैं, कभी उनके भी कोई इमोशंस हो सकते हैं ऐसे। तो whatever it is, आपके सामने जब प्लेट आए, आप उसको जब थैंक यू करते हो खाने के पहले, you are changing its energy, you are changing its aura just by a simple thank you. Okay? Yes. One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you're eating or drinking. When you savor your food or drinks, you're appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you're in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You'll find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explode, and when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. Yes, तो ऐसा सब कोई ट्राई करना आज, हाँ। एंड पता है ये ना सिंपल एक वाटर से भी ट्राई कर सकते हो, मतलब आप जैसे वाटर है ना बॉटल्स में होता है, हम लोगों ने लिया और पी लिया, उसको सिंपल आप एक बार मुंह में रखना आज जब पियोगे, फील इट्स टेस्ट, ट्राई टू सेवर इट एंड देन गल्प इट डाउन एंड सी कि डिफरेंस मालूम पड़ता है कि नहीं। एवरीबडी विल डू दिस एक्सपेरिमेंट इवन विथ सिंपल वाटर जो आप रोज पीते हो, जो एवरीडे पीते हो, एक्सपेरिमेंट करना। ओके, यस। Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you feel far more gratitude. Yes, तो ये ना आज सब करेंगे। आज तो खैर डे इज ओवर, या फिर बहुत लोगों का डे अभी कंटिन्यू रहेगा, और अदरवाइज वी विल स्टार्ट डू इट टुमारो। वॉट एवर यू ईट, मगर अगर आपने एक हाथ में बनाना लिया है या एप्पल लिया है, थिंक ऑफ द फेस ऑफ द फार्मर, think of the people who are behind it, and you are just saying thank you because you are giving them acknowledgement. आप उन लोगों को acknowledgement दे रहे हो mentally, just everyone can do it ना। yes, तो before eating anything, मतलब कुछ भी आप just एक snack लिए, just एक apple, it will not be difficult। हाँ, शुरू में लगेगा कि भूल गए, याद नहीं आ रहा क्योंकि habit नहीं है, but suppose धीरे धीरे वो हैबिट हो जाएगी। एंड यू कैन से इट आउट लाउड ऑल्सो, यू कैन से इट इन योर माइंड, दैट इज ओके। और जब भी आप कुछ भी खाओ, अभी सपोज आफ्टर द सेशन इफ यू टेक मिल्क, इफ यू टेक एनी स्नैक, अगर डिनर बाकी है आप लोगों का, तो जस्ट टेक वन माउथफुल, सिर्फ एक बाइट, आप उसको जब लो, उसको एकदम अंदर में पूरा मतलब एकदम रेलिश करो, इसको एंजॉय करो, ऑब्जर्व करो, एंड देन फील कि उसका क्या एंजॉयमेंट आया। ठीक है? ओके, यस, कंटिन्यू। You can also try something I do, which helps me to feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food and drink as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand, and you're shaking the magic dust out of the shaker all over your food before you eat it and into every drink. Yes, so ये बहुत easy और ये बहुत मतलब fun है, मतलब ये ना बहुत मजा आएगा करने में। सब वो शेकर मालूम है ना, जो सॉल्ट एंड पेपर वाले शेकर्स होते हैं, तो इमेजिन दैट वी हैव अ मैजिक डस्ट शेकर। मैजिक डस्ट होती है वो, इट्स लाइक अ डस्ट जो पूरा ग्रैटिट्यूड डाल देती है हर चीज में। ठीक है, मैजिक डस्ट का चैप्टर आएगा आगे, बट मैं बता देती हूँ। तो इट्स लाइक ग्रैटिट्यूड की डस्ट। तो सपोज आपके सामने प्लेट आए ना,
आप इमेजिन कर लो आपके हाथ में वो शेकर है जिसमें मैजिक डस्ट है, एंड यू कैन जस्ट ऐसे आपने शेक किया उसको, वाओ, नाउ माय प्लेट इज फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड, और फिर उसको खा सकते हो आप। आपका मिल्क आया, some gratitude, some magic dust. So it will be fun also. You can do this because मैं करती हूँ, मैं ना magic dust नहीं, shaker नहीं, मैं अपना ना हाथ ऐसे ऐसे करती हूँ। My children are like, बाबा आप क्या जादू टोना कर रहे हो? What are you doing on our food? Let me do it. तो ये मेरी हैबिट है कि I just simply wave my hands before their food, before their plates also, कि जब मैं भी उनको कुछ भी देती हूँ ना, because उन लोग को तो बोला ही है करने, बट अपनी तरफ से मैं भी उसमें बहुत सारा ग्रैटिट्यूड डाल देती हूँ। यस, सो दिस यू कैन डू। ओके, If at any time during the day you forget to say the magic words thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot. Visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drinks multiple times in the day, then repeat the same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, तो जिस जिसके ड्रीम्स इम्पोर्टेंट है ना, उनके लिए, जिस जिसके भी ड्रीम्स इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो भी दिन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो उसको आपको नेक्स्ट डे फॉरवर्ड करनी है कैरी। जस्ट डोंट थिंक कि हम लोग ये सेशन में एवरी डे वी आर स्पेंडिंग 1 hour ऑफ आवर्स जस्ट टू टाइम पास, नहीं होगा। मतलब लास्ट में एंड में आप बोलोगे आंटी आई डिड नॉट सी एनी मैजिक्स, आई एम नॉट सीइंग एनी मैजिक्स, तो व्हाट विल हैपन? आप अगर उस दिन की आप मतलब रोज की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, सो अगर सपोज हमने ये आज अभी इस सेशन के बाद से स्टार्ट करेंगे, कल सेशन के पहले तक, अभी का जो प्रैक्टिस है मील वाला, और सपोज आप भूल जाते हो, आप कुछ खा लिए फिर उसके पहले ग्रेटिट्यूड देना भूल गए, बोले ओ आई तो फॉरगॉट, तो जब आपको याद आया ना कि अरे मैं भूल गई, उस समय याद कर लो, ओ आई हैड आज जो मैं मतलब आज जो मैंने डिनर लिया था, थैंक यू फॉर दैट डिनर, बस उस समय याद करके आपने उसको ग्रेटिट्यूड दे दिया। और अगर आप बहुत बार बार यू फील फॉरगेटिंग, तो फिर नेक्स्ट डे आल्सो यू हैव टू कंटिन्यू, बिकॉज यू cannot afford to miss a single day. Your dreams depend on it. Okay, yes, continue, Siddharth. Being grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel that degree of gratitude, you will see the magic happen. This is something very simple. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई रिलेशन खोजो, कोई फ्रेंड खोजो, अब कोई नेगेटिव सिचुएशन खोजो, उसमें ग्रैटिट्यूड ढूंढो, इतना कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं इसमें। एक सिंपल जो हम लोग फूड एंड वाटर में सब चीज आ जाएगा, आपका डाब, आपका मिल्क, आपके मिल्क शेक्स, योर लस्सीज, योर कोल्ड ड्रिंक्स, एवरीथिंग, ठीक है। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 8। Magic practice number 8, the magic ingredient. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessings as you can. 2, before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you're about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. So thank you, Siddharth, for reading. Thank you, Neil. Thank you, Nishita. Sorry for your bad network. Sorry for your voice. So thank you, Siddharth, for reading for us. Thank you. Yes, everyone, switch on your videos and let's talk. मतलब पहले ना मतलब वेरी फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली मैं नहीं करती थी, और अब जो मेरी आदत है, इवन आई गो टू अ रेस्टोरेंट, आई गो टू अ वेडिंग, आई गो टू अ पार्टी जहाँ पे बहुत लोग हैं, या फिर रेस्टोरेंट में जहाँ लॉट्स ऑफ पीपल आर सिटिंग विथ मी एंड मेरे पास फूड आता है, आई एम नॉट एम्बैरेस्ड, आई एम नॉट अशेम्ड या ऐसा कुछ,
मैं अच्छे से एकदम हाथ जोड़कर करती हूँ. You know, I say thank you for such an amazing food. Wow, suppose I've ordered South Indian. So, you know, wow, thank you for this amazing South Indian I'm having. उसके बाद only I start. अब मुझे चाहे किसी को कुछ बुरा लगे, कि कोई बुरा क्यों लगेगा, खैर कोई कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर. तो मैं अपना एकदम प्रॉपर, एंड दिस हैज नाउ बीन ना मेरे मतलब इनकलकेट हो चुकी है मेरी हैबिट में, एंड आई फील गुड. मतलब मजा आता है. एंड वाटर ऑल्सो, मतलब इवन माई वाटर बॉटल जो है ना, मेरा फिक्स्ड एक वाटर बॉटल, उसके ऊपर ही मैंने थैंक यू लिख लिया है, ताकि मैं अगर भूल भी जाऊं ना तो वो थैंक यू मार्कर से लिखा हुआ मुझे रिमाइंड कर देता है. ओ यस. सो मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली, यू नो, व्हाइल ड्रिंकिंग, इट्स लाइक थैंक यू. एंड स्पेशली, यू नो, कभी हम बीमार हो जाते हैं, या कभी इफ वी आर सफरिंग फ्रॉम बैड हेल्थ, लैक ऑफ हेल्थ, and we are drinking that water. This is something very deep, book mein nahi hai, but I am sharing. And you are giving command to that water, you know, you are requesting to that water, thank you for healing me. Thank you, suppose aapka, you know, digestion kharab hai abhi kuch, thank you for healing my digestive system. Suppose kuch kahin body mein pain hai, thank you for healing my shoulders pain, jo bhi. आप बिलीव नहीं करोगे, आवर बॉडी इज 70% वाटर, ऑल द सेल्स आर कवर्ड विथ वाटर. मतलब अगर अपने वाटर से फ्रेंडशिप कर ली, वाटर को बार बार आप थैंक यू कर रहे हो पीते समय, तो जस्ट इमेजिन, मतलब यू आर गोइंग टू हैव अमेजिंग हेल्थ ऑलवेज. स्पेशली आप मेडिसिन लेते हो कोई अगर, यू नो, स्पेशली तो मेडिसिन को तो थैंक यू बोल के ही लेना होता है. बाम अप्लाई करते हो, अच्छा, दैट इज इन हेल्थ चैप्टर, मैं अभी क्यों बोल रही हूँ. So like what you were talking about is like also scientifically proven. Like, so there was this experiment where they took water and they said specific words. They said the words gratitude, they said thank you, they said a lot of positive words, and then they ended up saying negative words. They said Adolf Hitler, and they said, like, say negative related words, and then they froze the water, and then under a microscope they observe what the crystals look like, and the ones in which you said positive words had clear cut crystals, like perfectly defined crystals, and the one which had negative words said to it had like fully disformed crystals. Yes. So like it's proven that words have like a major impact on the water. Yes. Water can hear you, water can listen to you. और ये ना, आपने तो सिद्धार्थ ये कहीं पढ़ा है या कहीं देखा है ना, this I have done myself. मैंने लास्ट सेशन में ना सबसे करवाया था. मतलब what we did, we took 2 identical jars, glass jars, हाँ, और उसमें हम लोगों ने पानी भर दिया, अराउंड 3/4 we filled with water, और उसमें बॉइल्ड राइस डाल दी थोड़े से एकदम नीचे में, क्योंकि ना वो खाली वाटर होगा ना तो वो दिखेगा नहीं उतना इफेक्ट, तो हमने थोड़ा सा उसमें बॉइल्ड राइस डाल दिया, एंड देन भी उसको एकदम एयर टाइट कर दिया जार को, सिमिलर एकदम होने चाहिए. एंड एक पे हमने लिखा आई लव यू, ठीक है, एक पे हमने लिखा इग्नोर. आई हेट यू वाला होता है, देयर आर ऑलवेज 3 जार्स, एक होता है आई लव यू, एक होता है आई हेट यू, और एक होता है इग्नोर. बट आई हेट यू बिकॉज सिंस आई एम इन दिस मैजिक जर्नी, तो मैंने वो हेट और वो सब, मतलब क्यों मेरे को क्यों किसी को बोलना है गंदे वर्ड्स या हेट वाले चीज मुझे क्यों दिखाना है, भले एक्सपेरिमेंट के लिए भी हो, तो आई डिड नॉट डू दैट. इग्नोर वाला था, उसको एक कॉर्नर में रख दिया, जो मेरे को उसको देखना ही नहीं, मैंने उसको देखा ही नहीं पूरे 30 डेज तक. और जो आई लव यू वाला था वो मेरे लैपटॉप के बगल में यहाँ पर रहता था. यू नो, एवरी डे आई यूज्ड टू से आई लव यू वाटर, आई लव यू बेबी, यू नो, मैं उसको फ्लाइंग किस देती, मैं उसको अच्छे वर्ड्स बोलती. एंड यू नो मेनी पीपल डिड दैट इन माई सेशन. और फिर लास्ट डे हम लोगों ने उसको, यू नो, वी ओपनड एंड वी सॉ, मेरे पास शायद पिक्चर्स होगी अगर तो आई विल शेयर. मतलब जो आई लव यू वाला था ना, द राइस उसका एकदम वैसा का वैसा वाइट, एकदम वाइट. मतलब शुरू में लोगों को लगा था कि नो सुवर्णा जी आप क्या बोल रहे हो, तो सड़ जाएगा, वो तो खराब हो जाएगा. मैंने बोला आप करके तो देखो, जस्ट डू इट एज एन एक्सपेरिमेंट. एंड वो एकदम वाइट था, थोड़े बहुत बबल्स आ गए थे. यस,
बट जो हमने इग्नोर वाला खोला ना, वो जो थे राइस, इट वाज डार्क येलो, और उसमें ना बहुत जगह ब्लैक ब्लैक पूरा वाटर में वो आ गया था। और जो लोग हेट्रेड वाला करते हैं ना, माय गॉड, आई कांट टेल यू, मतलब इतना ज्यादा उसमें बैड स्मेल कि यू कैन नॉट ओपन द जार। उसको उन लोगों को बोलना होता है, आई हेट यू, मतलब यू आर द वर्स्ट, उसको मतलब जितनी गंदी बातें बोल सकते हैं वो बोलना होता है। तो जस्ट इमेजिन, वाटर सेल्स, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, दे कैन हियर यू, दे कैन आपके फीलिंग्स को, आपके वर्ड्स को, आपके सिर्फ फीलिंग्स, अगर आप बोल भी नहीं रहे हो ना, आप जस्ट फील, वो पहचान लेते, वो फ्रीक्वेंसी दे कैन जस्ट इमेजिन। एंड यू कैन गूगल दिस, राइस एक्सपेरिमेंट थ्योरी, आपको आई थिंक मिल जाएगा। एंड अगर मेरे पास पिक्चर्स आई थिंक सेव किया तो था मैंने, अगर होगा आई विल डेफिनेटली शेयर। आंटी आई हैव, मम्मा की थी ना तो। हाँ हाँ, निशिता की मम्मा ने किया हाँ था, तो डिड यू सी द चेंज निशिता? हाँ, yes auntie I saw and there were three but था ना उसमें बोलती थी that also ignored only but तेरी आवाज वो जो बाहर लव आ वाला रही था है, वो एकदम ये voice मेरे को याद है। क्या क्या वापस बोलो। So there now can you hear me? No. 1 second, can you hear me now? Yeah, better, yes. हाँ, so there were 3 jars only auntie अच्छा, and then जो लव वाला था वो एकदम ठीक ही था और बाकी दोनों में there was that black you know yes, I don't know yeah. yes. तो it applies on people also, ये people को भी अप्लाई करता है। हर किसी की ना 70% बॉडी वाटर से बना हुआ है। तो आप किसी को भी, सबने वो देखा था ना ये तारे जमीन पर, यस। तो जिसको भी मतलब इट्स ऑल अबाउट एंड वाटर एंड फूड, यस। एंड वाटर की पता है मेमोरी भी होती है, इट्स समथिंग वेरी स्ट्रेंज टू हियर, बट वाटर हैज मेमोरी ऑल्सो। मतलब सपोज हमारे फिल्टर्स में कहाँ से आ रही है पानी, पाइपलाइन से आ रही है ना, देयर आर लॉट्स ऑफ पाइप्स इन्वॉल्व्ड। और पाइप स्ट्रेट होती है क्या? नहीं ना, पाइप्स ऑलवेज हैव बेंड्स, वो ऐसे बेंड होके फिर बेंड्स होते, फिर बेंड्स होते, और वो कहाँ कहाँ से पास करते हैं वो पाइपलाइंस, और वो जहां से पास करते हैं ना, वो उस जगह की मेमोरी ले लेते हैं। दोज ऑल मेमोरीज आर कंटेन्ड इन दैट वाटर। और फिर वो आपके फिल्टर में आती है, और आपने डायरेक्ट उस फिल्टर में ग्लास ग्लास में भरा और उसको पी लिया। ऑल दोज मेमोरीज वो कहाँ कहाँ के उसकी, वो आपके अंदर चली गई। तो नेवर डू इट। या तो आप उसको कहीं मटकी में भर के रखते हो, या फिर आप अपने बॉटल्स में रखते हो। एनर्जाइज इट विद ग्रैटिट्यूड एंड देन हैव इट। मैंने अपनी मटकी पे, अपने फिल्टर पे, सब जगह थैंक यू लिख रखा है। मतलब कितना, मतलब जितना कर सकते हो कर रही हूँ, बट इट्स शोइंग मी अमेजिंग चेंजेस इन एवरीथिंग इन माय लाइफ। माय हेल्थ, अच्छा ठीक है, बहुत बोल लिया। सो ये बताओ कि एवरीवन इज प्रॉमिसिंग कि आज के बाद खाने से पहले थैंक यू करेंगे। इट्स सच अ सिंपल एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, सच अ सिंपल एक्ट। आप अगर ज्यादा इलेबोरेट Yes, वे में ma'am. नहीं, वेरी गुड सोहालिया, शौर्य, यस, देवयानी, अदिति, वेरी गुड। Yes, ma'am. सिंपल इट इज, कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो उन लोगों को भी, आप खुद के लिए कर रहे हो, आई नो कि वो आपके पेट में जाके आपको फायदा करेगा, बट it will show respect towards all those people who are involved in that production of food. तो कितने सारे कारण है, it's for your selfish reasons also, it's for your dreams also, and it's for acknowledgement also, it's also for all those people who sleep hungry every day, उनके लिए भी। तो इतनी छोटी सी चीज हम कर सकते हैं ना। everyone is promising, yes। और अगर हम भूल भी गए ना, सपोज अभी धीरे धीरे ना एक बार में हैबिट नहीं हो जाएगी। तो सपोज हमने अभी कुछ लिया, भूल गए हम करना, बट हमको याद आ गया, मैंने उस समय ग्रेटिट्यूड नहीं दिया था, उस समय याद कर लो, ओ थैंक यू फॉर दैट मिल्क शेक आई हैड, थैंक यू फॉर दैट अमरस आई हैड। ठीक है,
तो अगर भूल जाओ तो ये कर सकते हो. एंड दिस एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर टुमारो. कल के लिए तो है कि बी अवेयर ऑफ व्हाट फूड यू आर हैविंग. अगर आप कुछ भी खा रहे हो, थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो उसको, relish it, savor it, then have it. Gratitude देके obviously. ठीक है. And suppose आपके siblings हैं and they are not in this session. क्या होगा जब उन लोग आपको देखेंगे ना, oh दीदी is doing thank you, वो भी करना start कर देंगे. Especially younger siblings. तो everybody be a beginner in your family, है ना? तो yes, yes, Sohalia and Shaurya, what do you want to say, baby? Auntie, I wanted to ask that do we say thank you before eating it or after savoring it and then No, always before eating it. and we say thank you for everything we eat, like even a toffee or something? Yes. Okay. आप चॉकलेट खा रहे हो, अरे वाओ, मतलब कितने लोग उसके पीछे है ना, so many peoples जो उससे जुड़े हुए हैं, आपके घर पर वो आया है, and so just say अरे वाओ सर, thank you for this dairy milk, खा लो उसको. And always before, आपने उसको सेवर किया, relish किया, उसके बाद आपको फिर मन कर रहा है, फिर से बोल दो, वाओ मजा आ गया आज खा के, thank you for this amazing dinner, amazing lunch, whatever. But before is mandatory, बाद वाला is optional. आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो. पहले करने वाला is mandatory. Okay, yes, any questions, anything? वो लगान मूवी देखी थी ना, सबने देखी है क्या, कि वो मेरे जमाने की थी? We watched that. I watched, yeah. आमिर खान वाली, yes. मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब उन लोगों के जो फील्ड्स थे उसमें बारिश नहीं होने के कारण दे आर मतलब सिंगिंग एंड डांसिंग एंड मतलब ये ना पूरा एंशिएंट मतलब होता ही था. लोग है ना बारिश आने के पहले वो रिचुअल्स होते थे टू गिव थैंक्स. कोई भी ऐसा मतलब कुछ बड़ा कुछ है उसके ना फूड का जो हार्वेस्टिंग होता है ना, उसके पहले उन लोगों का पहले थैंक यू वो कुछ फेस्टिवल होता है पहले ही, कि ओके नाउ हम लोगों का हार्वेस्टिंग सीजन आ गया, दे मेक एक फेस्टिवल मनाते हैं उन लोग थैंक यू करने के लिए. सो पहले के लोग जानते थे उसको, यस करते थे, एंड नाउ वी नो व्हाई वी हैव टू से थैंक यू. मैं देखती थी कि हाँ बड़े लोग कर रहे हैं, बस ठीक है, हाँ करते हैं, ठीक है, बट क्यों करना होता है मुझे नहीं मालूम था. एंड आई फेल्ट रियली रिस्पेक्ट फॉर फूड मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई. मैंने फूड वेस्ट करना, वो जो थाली में अपने छोड़ देते हैं ना, वो बंद कर दिया. अच्छा, कौन कौन यहाँ फूड वेस्ट करता है, बी ऑनेस्ट? ऐसा कोई है? मतलब नहीं पसंद आया, थाली में छोड़ दिया, एंड चलो, वेरी गुड, वेरी नाइस, गुड पीपल. ओके, चलो, इट्स 10:06 टुडे, वी आर लेट. Let's do a short prayer of gratitude. Thank you, God, for everything. I love you. So, bye everyone. Have a great day. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Bye, auntie. Thank you, auntie. Bye, auntie. Bye. Bye, auntie. Thank you so much, auntie. And remember, don't forget. Ji, ma'am. Yes. Bye, auntie. Bye. Bye, Neil. Bye, auntie. Bye, Priyansh. You are so sleepy today. No, like I'm in a bad mood. So Tomorrow I'll talk about mood shifters. मुझे कोई याद दिलाना, हाँ सिद्धि, remind me, ठीक है? That I have to talk about mood shifters. It's a list which I have created for myself. कि बहुत बार होता है I am in a very bad mood और उस दिन लगता है कि किसी का सर तोड़ दूं या दीवार तोड़ दूं या बर्तन तोड़ दूं. not angry wala bad mood, auntie. Okay, sad वो तो वाला जब bad. होता है तो I will not join the class also. तब
I have my own list of mood shifters.